Let's start. Good evening to all of you. Subject chemistry, standard 11 science, lecture number 1. This chapter is important to all organic topics. Means organic chemistry, aldehyde, ketone, alcohol, कार्बोनिक एसिड, अमाइंस जो भी पढ़ेंगे सबके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट है. In this topic we are learning here first introduction of chemical compounds, hydrocarbons, their classification, IUPAC name, then bond fission, types of reagent like reactive intermediates, nucleophilic, electrophilic reagents, then carbocation, carboniamine formation, electronic effect, electromeric effect, inductive effect, the hyperconjunction, application of hyperconjunction, resonance, all topic जितने भी आपको यूजफुल है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. नेक्स्ट डिटेक्टिव ग्रुप्स, एक्टिविटी ग्रुप, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, इस सब के सब टॉपिक यहाँ पे क्या होने वाले, कवर होने वाले. सो डोंट मिस एनी लेक्चर. नॉमेनक्लेचर में जो भी आपका कंफ्यूजन है वो भी दूर होने वाला है. नॉमेनक्लेचर में जो भी कंफ्यूजन आईयूपीएसी नेम में होता है कंफ्यूजन, वो भी यहाँ पे क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा. ये पढ़ेंगी तो आप कौन सा भी अल्डेहाइड हो, कीटोन हो, उसका नॉमेनक्लेचर आप आराम से लिख सकते हो. ओके, सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आज के टॉपिक में फर्स्ट कवर करना है हाइड्रोकार्बन्स मींस CH. उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, जो ऑलरेडी यू लर्न इन 10th स्टैंडर्ड, राइट नो, हाइड्रोकार्बन्स. लेकिन थोड़ा भी डिटेल स्टडी होगा. डिटेल मतलब बहुत सारा सा डिटेल में जाएंगे. इंट्रोडक्शन टू केमिकल कंपाउंड्स एंड क्लासिफिकेशन. हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. हिस्ट्री लिखना जरूरी है. केमिकल कंपाउंड्स, oil, this was sugar, then food, that is the proteins, then salt, calcium carbonate, CaCO3. They classify into different groups. Living organism, that is the organic compounds, and non-living, that is the inorganic compounds. Organic and is the inorganic compounds, right? The compound obtained from non-living source are called what is the inorganic compound. जैसा कि minerals है, क्या है, minerals, glass, soil, ये सब किसमें, inorganics. And organic compounds, it was believed that the organic compound can only obtain and animals thus can not be artificially. Means organic compound का पहले मीनिंग क्या था, the compound which are obtained from the plants and what is the animals, they are known as the organic compounds. लेकिन क्या हो गया, inorganic से भी क्या बनाया, organic compound बनाया. Do you know which compound first made from inorganic to organic? 10 में हुआ है ना, 10 क्लास. नाम बताएंगे याद आएगा. चलिए क्या गया है एक नाम, Bergillus hypothesis for scientists. Mysterious forces from nature, mysterious means amazing, जो operate on plants, animal, produce organic compound. He says, according to Bergillus, mysterious force is there. That's why compound is formed from the plants and animals. Who said? Is a Bergillus, for scientist. Since this force cannot be artificially prepared, organic compounds can't be prepared or artificially. They only prepared what by plants and animals. क्योंकि उसके लिए कौन सा फोर्स चाहिए, मिस्टीरियस फोर्स चाहिए.
वो फोर्स रहेगा वो किसके अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर है। वही क्या कर सकते हैं, वही क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा किसने बोला है, बर्जेलेस हाइपोथेसिस। बर्जेलेस का ये हाइपोथेसिस है, बर्जेलेस साइंटिस्ट ने बोला, मतलब उसने माना है ऐसा, सपोज अच्छे किया। NH4NCO अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट converted into NH2C double bond O NH2 is called urea. क्या बोलते इसको, यूरिया। अमोनियम साइनेट इज व्हाट, इट इज अ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक से क्या बनाया, ऑर्गेनिक्स, यूरिया। क्या बनाया, यूरिया। अमोनियम साइनेट से क्या बनाया, यूरिया। प्रिपेयर्ड बाय, इस साइंटिस्ट नेम क्या है, फ्रेडरिक होलर। होलर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। He converted ammonium cyanide towards the urea and proved that organic compound containing C का carbon is known as organic compound, जो आपने अर्लियर डिफिनेशन किया है। ऐसा CH4 C2 H6 CH3 COOH, CH4 C2 H6, CH4 कौन है, मीथेन, C2H6 कौन है, इथेन, या CH3 COOH ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, एसिडिक एसिड। कौन है ये, एसिडिक एसिड, CH3 COOH। सबके अंदर क्या है, कार्बन 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 है, राइट, कार्बन और क्या, हाइड्रोजन, CH। कंपाउंड कंटेन CH एज द मेन एलिमेंट समथिंग along with the sub elements such as oxygen, nitrogen, sulfur और X that is a halogen। उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। CH carbon and the hydrogen, only CH as the element in the molecule is known as hydrocarbons। Now what about CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कौन है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। CH4 मीथेन, when reacted with the chlorine, 4 chlorine replaced what is the 4 hydrogen, what form, CCl4 carbon tetrachloride minus 4H and plus 4Cl, compound form is the CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन कितने, 1 और क्लोरीन कितने, 4, so is known as a carbon tetrachloride, is known as carbon tetrachloride। CH4 मीथेन कौन है, ये ऑर्गेनिक है, क्या है, ऑर्गेनिक। क्या ये भी ऑर्गेनिक है, What about the CCl4, is it organic or inorganic, 4 hydrogen replaced by the 4 chlorine, obviously जहां पे कौन है, हेलोजन है, हेलोजन रिप्लेस किया ना, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द हेलोजन, derivatives of hydrocarbon। So thus the compound which are hydrocarbons or its derivatives are called organic compounds। हाइड्रोकार्बन और इस डेरिवेटिव, ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें CH है, उसका ये डेरिवेटिव है, उसका प्रोडक्ट है। हाउ फॉर्म, बाय रिप्लेसिंग 4 हाइड्रोजन बाय 4 Cl, राइट, इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीथेन CH4 C6H2 एंड H1, हाइड्रोजन कितने, कार्बन कितने, मीथेन कार्बन C और 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे, दैट इज अ कार्बन इज अ बॉन्डेड विद 4 हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे कार्बन कितना 1 और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए यहाँ पे 4। 1 कार्बन विद बॉन्डेड विद 4 हाइड्रोजन, बॉन्डिंग आपको मालूम है, कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे शेयरिंग होती है, राइट, सबको पता है। these are the electrons of the carbon, इसका वैलेंसी कितना है, कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है, कितना है 4, टेट्रावैलेंट है, कार्बन इज व्हाट, टेट्रावैलेंट, and hydrogen is a monovalent, they share one electron, and carbon share one electron with one hydrogen. In this 4 bond form, all these 4 bonds are also covalent bond। कौन से हैं, covalent bond। hydrogen nucleus completes and 4 bond form, thus bond formed by mutual sharing electron pair is called as a covalent। Introduction of hydrocarbon, different kinds of the covalent bonds, single covalent bond,
when two atoms are share one pair of electron is called as a single. ये सब बेसिक है आपका, जैसा कि ए बी। नेक्स्ट जो है एग्जांपल सी, और सी के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड, राइट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, व्हेन टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स when three pair of electron sharing of three pair of electron is called triple bond, C triple bond C। ये कार्बन के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और क्या ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। when two atoms share three electron pair is known as a triple covalent bond, for example A triple bond P या C triple bond C। इसका एग्जांपल क्या बोलेगा, इसका एग्जांपल C triple bond C एग्जांपल, हाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या बोलते हैं इसको, इथाइन। हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली CH एलिमेंट आर टर्म एज अ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स बेस्ड ऑन CC लिंकेज, कार्बन कार्बन लिंकेज। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या बोलेंगे इसको, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। कंपाउंड क्लासिफाई द ऑन बेस ऑफ लिंकेज, जिसमें सिंगल बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं, अल्केन किसमें आता है, वो सैचुरेटेड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसमें आते हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली CC सिंगल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल नोन एज अ सैचुरेटेड। Alkanes, unsaturated hydrocarbons, hydrocarbon containing C double और क्या ट्रिपल मल्टीपल, टू और थ्री बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इज नोन एज व्हाट इज द अनसैचुरेटेड। क्या बोले इसको, अनसैचुरेटेड, इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन एंड व्हाट इज द अल्काइंस, अल्कीन्स डबल बॉन्ड, अल्काइंस क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। व्हिच इज द फर्स्ट अल्कीन, which one is the first alkene, ethene, and which is the first alkyne, ethine, which is the first alkane, methane, not ethane, methane। alkane family, number of carbon and formula and name। number of carbon 1, इसको क्या बोलते हैं, CH4, that is a methane, right। number of carbon 2 is known as a C2H6, that is a ethane। number of carbon 3 is known as a propane, right, क्या बोलेंगे इसको, propane। number of carbon 4 butane, but there is a CH4 and C2H6। what is the difference between these two, is the difference here, difference one carbon and what is the two hydrogen, there is a CH2 difference, though two successive alkanes they differ by CH2, two successive alkanes differ by CH2 group, CH4 लो, C2H6 या C2H6 C3H8, इनमें डिफरेंस कितने का है, व्हाट इज द मास डिफरेंस हियर, व्हाट इज द मास डिफरेंस, 14। कार्बन कितना है, CH2 मतलब कार्बन का मास कितना है, 12। 2 हाइड्रोजन मतलब कितना हो गया, 2, टोटल कितना हो गया, 14, डिफर बाय 14, ये भी डिफर बाय 14। दिस सीरीज नोन एज, इस सीरीज का नाम क्या है, is differ by 14 mass difference या differ by CH2 and having same functional group is known as what, कौन सा सीरीज है वो, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, कौन सी सीरीज है, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, होमोलोगस सीरीज। in case of this also differ by CH2। next compound is the butane, then pentane, then C6H14 is what, hexane, then heptane 7, C7H16 heptane, and then what is the octane, octane के बाद nonane,
then decane, then undecane, then dodecane. ओके, यहाँ तक बस हो। अल्कीन फैमिली, उसका क्या होगा? अल्कीन फैमिली, फर्स्ट अल्कीन, इथीन। नंबर ऑफ कार्बन फॉर्मूला एंड व्हाट इज द नेम? डबल बॉन्ड दिख रहा है, C डबल बॉन्ड C, C2H4 is the ethene, C3H6 that is the propene, then butene, pentene, hexene, heptene, octane, nonene, decene, undecene, and dodecene. Okay. Next, alkyne family. ANE replaced by YNE. Carbon carbon triple bond. Start with ethyne. C. Carbon 2. C2H2. Carbon 3. C3H4. Name propyne. Next name C4H6 is a butane. Next name 5 carbon is known as pentyne. 6 carbon hexyne. 7 carbon heptyne. 8 carbon is a octane. 9 carbon is a nonine. Then decyne, undecyne, and dodecyne. C12. Writing structure formula, types of carbon. Different ways of writing the structural formula. Different ways. Bond line जानते, condensed formula, molecular formula, right? ये सब ways है. First complete formula. इसको बोलते हैं complete formula. क्या हो गया ये? Complete formula, structural formula. कौन है? CH4, C2H6, मीथेन, इथेन. Condensed formula, उसका एक condense एक साथ लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको कैसा लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको कंडेंस करें. ये ग्रुप को कंडेंस किया, इस ग्रुप को भी क्या कंडेंस किया, बनेगा CH3 या CH3, यहाँ पे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. प्रोपेन को कैसा लिखेंगे? CH3 CH2 CH3. ब्यूटेन का कैसा लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 CH3. ये प्रोपेन. ये क्या है? एन ब्यूटेन. CH3 CH2 CH2 CH3 दैट इज अ CH2 टॉइस किया. CH3 CH2 CH2 CH3 जगह तो भी राइट है, या CH3 CH3 टॉइस CH3 एन ब्यूटेन. ये कौन सा फॉर्मूला है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड लाइन. क्या ये? बॉन्ड लाइन था ये 10th में? नहीं, ये आपको नया होगा. सब नोन से अननोन तक जाने का है. नोन टू अननोन. टीचिंग का मेथड है कि नोन टू क्या अननोन. तो जो आपको मालूम है उससे क्या करना, जो मालूम नहीं है वहां तक जाना है. उसको क्या बोलते हैं? नोन टू अननोन. ये नोन था आपका, अभी ये अननोन तक जा रहे हैं. बॉन्ड लाइन. तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4. यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, राइट. हर एक जगह पे वहां पे क्या है? कार्बन है. हर एक प्लेस में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे. कोई ग्रुप नहीं दिया, जिसका मतलब यहाँ पे कौन है? स्टार्टिंग में CH3, उसके बाद यहाँ पे क्या है? CH2, फिर यहाँ पे कौन है? CH2, यहाँ पे कौन है? CH. ओके. अब ये कौन है? इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे CH3, फिर CH2, फिर CH2 और ये CH3. इसके अंदर क्या? 4 कार्बन है. 4 कार्बन वाला कौन है? एन ब्यूटेन. कौन है? राइट. Terminal indicates N point indicate that what? CH3.
एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन जानते हैं ना, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, ये क्या रिफ्लेक्शन है, क्या है रिफ्लेक्शन। जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पॉइंट, उसको क्या वहां पे कौन रहेगा, CH2, कौन रहेगा, CH2, इंडिकेट CH2। बस इसमें जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एग्जांपल CH3 CH2 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 CH3, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसा होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, ओके। एन कौन है यहाँ पे, CH3, यहाँ पे भी कौन है, CH3, टर्मिनल इंडिकेटेड CH3, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इंडिकेटेड हियर CH2, CH2, और यहाँ पे क्या है, क्लियर, समझ में आ रहा है। एन पेंटेन, क्या नाम इसका, एन पेंटेन, 5 कार्बन एन पेंटेन, कौन है 1 2 3 4 5, क्या है, एन पेंटेन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन, क्या होगा, एन हेक्सेन, ओके। पॉलीगॉन फॉर्मूला, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मीन्स ट्रायंगल, स्क्वायर, that is quadrilateral, triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, इनको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। टू ड्रॉ द पॉलीगॉन फॉर्मूला मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड, कितनी चाहिए, कि 2 है, CH2 CH2, उसमें पॉलीगॉन बनेगा क्या, ज्योमेट्री, क्लोज ज्योमेट्री बनती है क्या, नहीं बनती है। जब आपको क्लोज ज्योमेट्री चाहिए तो एटलीस्ट कितना वर्टाइस चाहिए, 3 वर्टाइसेस, हाउ मेनी, 3 वर्टाइसेस आर रिक्वायर्ड, तो क्या बनेगा, पॉलीगॉन बनेगा, मींस मिनिमम 3 कार्बन वाला क्या बनेगा, यहाँ पे पॉलीगॉन बनेगा। यानी हर एक पॉलीगॉन में हर एक पॉइंट क्या रहेगा, वहां पे CH2 होगा, कौन रहेगा, CH2, वहां पे CH3 आएगा नहीं, ब्रांच होगा जा सकता है लेकिन पॉइंट पे आएगा नहीं। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हर एक पॉइंट, मतलब क्या बोला मैंने, CH2, हर एक पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, CH2, CH2, ये भी क्या है, CH2, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन को पैरेंट कौन है इसका, कौन है, प्रोपेन, कौन है यहाँ पे, प्रोपेन, और एक क्लोज है, क्लोज को क्या बोलते हैं, साइक्लो, क्या बोलते हैं, साइक्लो, नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। ये सपोज स्क्वायर ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, हर एक पोजीशन में कौन है, यहाँ पे CH2, इधर CH2, इधर से CH2, यहाँ पे क्या है, CH2 है, तो क्या नाम होगा रोहित यहाँ पे, ब्यूटेन, कौन सा ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट Rahul, tell me name of this compound. Is it cyclopentane? Anurag? Cyclohexane. Okay, right. Message me. Shivam? cyclohexane, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 रहेगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी कौन है, CH2, यहाँ पे भी कौन है, CH2। टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, इसमें वो कौन है, हेक्सेन है,
और एक क्लोज है तो क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होगा इसका, साइक्लोहेक्सेन। एच का नहीं, एच नहीं, हेक्सेन है। हेक्सेन है कि कार्बन 6 तो क्या हो गया, हेक्सेन क्लोज है ना, क्लोज और सिंगल बॉन्ड है। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड हो रहे हैं ना पूरे, देखो 1 2 और ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे सी है, पूरे हो रहे। सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड। फैमिली कौन सा होगा, अल्केन का, राइट। वैलेंसी पूरी है, लेकिन ये कैसा है, क्लोज है, इसलिए इसको बोले साइक्लोहेक्सेन, राइट। ट्रायंगल, साइक्लोप्रोपेन, स्क्वायर, साइक्लोब्यूटेन, this one cyclopentane, Pentane. okay, this one cyclohexane, right। कौन सा है, पॉलीगॉन फॉर्मूला। फर्स्ट कौन सा था, कंप्लीट फॉर्मूला, क्या है, कंप्लीट फॉर्मूला। सेकंड वन कंडेंस फॉर्मूला, थर्ड वन बॉन्ड लाइन, फोर्थ वन पॉलीगॉन। समझा। टाइप्स और नेचर ऑफ सी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, टाइप्स और नेचर ऑफ सी एटम इन अ मॉलिक्यूल। कार्बन, this carbon is C atom directly attached to one other C atom is known as a primary. One carbon attached to only one other carbon atom. One carbon is attached to only one other carbon atom is known as primary. क्या ये primary? यहाँ पे बहुत सारे आपके सेकेंडरी की जो आपका कंफ्यूजन है, सेकेंडरी है क्या, आइसो है, नियो है क्या, टर्शियरी है। जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वो टाइम पे आपका कंफ्यूजन होता है। दिस कंफ्यूजन वी अवॉइड हियर। इस लेक्चर में आपका वो कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर में आपकी मिस्टेक होगी नहीं आईयूपीएसी में। देखो खाली ध्यान दो। प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, टर्शियरी को। नियो क्या है, सेकेंडरी क्या है, आइसो क्या है, ये सब हम देखेंगे। फर्स्ट कौन सा, प्राइमरी। प्राइमरी क्या होना चाहिए, एक कार्बन दूसरे एक ही कार्बन को अटैच होना चाहिए, तो बोलेंगे इसको प्राइमरी। तो फर्स्ट वन चेक करो, दिस कार्बन अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम, सो इट्स द प्राइमरी। इज इट प्राइमरी, दो कार्बन का अटैच है, एक प्राइमरी है क्या, नहीं है, दो कार्बन का अटैच है। ये प्राइमरी है क्या, देखो सी अटैच यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये जो सी है 1 2 3 4 चार कार्बन का अटैच है, राइट। ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कार्बन है, ओनली वन कार्बन को अटैच है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। ये क्या हो गया, प्राइमरी। ये क्या हो गया, प्राइमरी। ये भी क्या होगा, समझा। मींस यहाँ पे हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन्स आर देयर, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन्स, 1 2 3 4 एंड व्हाट इज द 5 प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है, 5 प्राइमरी कार्बन। समझा प्राइमरी। प्राइमरी okay, this one not a primary. This carbon attached to two other carbon atom, so carbon atom directly attached to two other carbon atom is known as secondary. क्या हो गया, secondary। नीचे कौन है, secondary है क्या, ये secondary है, secondary है, ये देखो No. तीन कार्बन का अटैच है, नहीं होगा। This carbon is attached to two other carbon atoms, so yes, it is the Secondary. 1 2 3 4, not the secondary. तो secondary कितने यहाँ पे, how many secondary are Two. two secondary। एक कार्बन secondary है क्या, नहीं है। एक कार्बन secondary है क्या, नहीं है। Next carbon, this carbon is here. This carbon attached to 1 2 3 other carbon atom, means
carbon atom attached directly to the 3 other carbon atom is known as tertiary. क्या बोले इसको? tertiary. क्लियर है सबको? नोट डाउन करो चाहिए तो बुक निकाल के प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी. प्राइमरी carbon atom attached to only one carbon atom, secondary is attached to 2 other carbon atom, and tertiary attached to 3 other carbon atom. What is the next? Carbon atom attached to कितने देखो 1 2 3 4 कितने हैं? 4 कार्बन का अटैच. क्या बोलेंगे इसको? इज नोन एज अ क्वाटरनरी. क्या बोले इसको? क्वाटरनरी. प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्या? क्वाटरनरी. So what is the type of the carbon atom? Methane. Methane क्या रहेगा यहाँ पे? Methane is a primary, secondary or tertiary or quaternary. क्या होगा? Primary. Methane is a only one है. Primary होगा, secondary होगा, कुछ नहीं होगा. Methane carbon atom which is not attached to any other carbon atom still referred to as primary. अटैच नहीं है लेकिन उसको क्या बोलेंगे? किसके लिए? ओनली फॉर मीथेन को ही बोलेंगे. किसको? मीथेन को ही. Thus the carbon atom which is attached to one other or no other carbon atom are called primary. एक नोट डाउन करो पॉइंट. Carbon atom attached to one carbon atom or no other carbon atom is known as primary. Okay. Next point is state and branch chain alkane. State chain is a branch chain. State and branch chain of alkanes CH3 CH2 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 पूरी के पूरी क्या स्टेट चेन दिख रहा है. कार्बन 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 इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी यूनिक प्रॉपर्टी यूज द कैटेनेशन. कौन सी प्रॉपर्टी उसके पास? कैटेनेशन प्रॉपर्टी. मींस कार्बन कार्बन कंटिन्यूअसली कैन बी बॉन्डेड. एक प्रॉपर्टी किसको दी है? कार्बन को दी है भगवान ने. उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी है. क्या नाम है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी. कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? बॉन्ड कंटिन्यूअस फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट CH3 CH2 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 CH3. क्या ये स्टेट चेन है या ब्रांच चेन है? क्या ये स्टेट चेन है, ब्रांच चेन है या स्टेप चेन है? स्टेप है ना. फर्स्ट स्टेप भी सेकंड स्टेट भी नहीं है और क्या ब्रांच भी नहीं है. कौन सी है? स्टेप चेन है. इसको खींच लो, स्टेट हो जाएगा ना. खींचो. ये क्या दिख रहा है आपको? पूरी स्टेट चेन दिख रही है. CH3 CH2 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 CH3. नाम क्या होगा इसका? हेक्सेन. कौन सा? N हेक्सेन. क्या बोले इसको? N हेक्सेन. नेक्स्ट इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? बोलो. N हेक्सेन. 1 2 3 4 5 6 ये भी N हेक्सेन ही है, राइट? The alkane containing continuous chain of carbon atom called as a state chain alkane or normal alkane. इसलिए N हेक्सेन लिखते हैं. N का मतलब क्या है? नॉर्मल. N alkane that is a N हेक्सेन. ये भी कौन है? N हेक्सेन ही है.
straight chain alkane. They are written as N alkane. Straight chain alkane are written as a N alkane. Normal alkane, normal butane, normal pentane, normal hexane, normal heptane, normal इथेन होता है क्या? N इथेन होता है क्या? N इथेन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दो ही कार्बन है, दो ही कार्बन, वहां पे ब्रांच बनती नहीं है। प्रोपेन में ब्रांच बनती है क्या? प्रोपेन में ब्रांच बनती है क्या? ग्रुप होगा तो आ सकती है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 कार्बन और एक क्या है, आप लिख दिया, आपको ब्रांच दिख रही है, राइट ना? देखिए सेकंड कार्बन, फर्स्ट सेकंड कार्बन के यहाँ पे कौन है? CH3 है। कौन है? CH3। क्या ये N होगा? नहीं, N नहीं होगा। क्या हो सकता है ये? सेकंड कार्बन को ब्रांच है तो क्या हो सकता है? इसको आइसो बोलेंगे या सेकेंडरी बोलेंगे? ये टर्सरी, ये कार्बन टर्सरी है। देखिए वो कब आता है? जब वहां पे आपको ग्रुप को दिखेगा, OH है, Cl है, COOH ग्रुप है, NH ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप अटैच है वहां पे, तो आप वहां पे इसको बोलेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ढूंढना है। स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितने हैं? 6 है। लेकिन सेकंड वाले में क्या है? ब्रांच है। सेकंड वाले में ब्रांच रहेगा, क्या बोलेंगे इसको? आइसो। ये भी हो सकता है, राइट? ब्रांच चेन अल्केन, क्या ये? ब्रांच चेन अल्केन। द अल्केन कंटेनिंग one or more branches of carbon atom, carbon attached to the continuous chain is called the branch. Alkane containing one or more branches, one or more branches. यहाँ पे कितनी ब्रांचेस है? एक ही ब्रांच। कितनी है? एक। ये चेन करेंगे तो एक ब्रांच ना, ऐसा देखो ये ब्रांच है, एक ही ब्रांच है। कैसी? टाइप्स, फर्स्ट टाइप आइसो, सेकंड टाइप आइसो, ऐसा कि सेकंड कार्बन को यहाँ पे क्या है? ब्रांच है। सेकंड कार्बन को यहाँ पे भी क्या है? ब्रांच है। 1 2 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 1 2 नहीं होगा, यहाँ से होगा 1 2, क्योंकि यहाँ पे नेरेस्ट है। नेरेस्ट यहाँ से ना, नेरेस्ट काउंट करना है। 1 2 सेकंड आ गया, 1 2 सेकंड आ गया, सेकंड को अटैच होगा तो क्या बोलना है? आइसो बोलना है, याद रखना। क्या बोलेंगे? आइसो। बीच में किधर भी अटैच होगा, थर्ड को, फोर्थ को अटैच है CH3, तो वो आइसो होगा नहीं। समझे? स्ट्रेट है, जहां पे सेकंड पे ब्रांच है, सेकंड पे ब्रांच है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये भी स्ट्रेट है और सेकंड पे यहाँ पे भी क्या है? आपको ब्रांच दिख रही है, राइट? सो व्हेन वन CH3 का मतलब क्या हो गया? मिथाइल। CH3 में सोचा मिथाइल। ग्रुप इज प्रेजेंट एट द सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट। कार्बन एटम ऑफ नॉर्मल अल्केन इज कॉल्ड सेकंड और सेकंड लास्ट। वर्ड याद रखो, सेकंड और सेकंड लास्ट। व्हेन वन